प्रचारिणी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। आप हूँ ठीक है प्रभु जी? अच्छा प्रभु जी हूँ ठीक है। ठीक है। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, समय नहीं मिलता। भगवान ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ समय नहीं मिलता। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਅਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਓ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੁਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਭਰੀ ਕਿਰਪਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो ਜਦੋਂ कृष्ण अंदर पहुंच गए ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਯ ਸਮ कृष्ण अंदर चले गए, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਮਾਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ, द्वेष ਕਰਨੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ बोल के आवे, चाहे सच बोल के आए, चाहे किसी भी तरीके नाल आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो मैं एक बार बेनती करांगा कि सारे अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं भी सब दे दर्शन कर सका। सो सारे झूठ सच बोल के सारा दिन पैसा कमाने च लगे होंगे, एक दूसरे नाल ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं। वो भौतिक जगत है, भौतिक जगत है, वही काम। भौतिक जगत से ईर्षा है, भौतिक जगत से द्वेष है, भौतिक जगत से एक दूसरे दी बदखोई करना, एक दूसरे दा लत खिंचना, बस ये वही काम है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत एक ऐसा जगत है जिथे भगवान दे प्रेमी वास करते हैं और भगवान दी भगवान दे सब नू भगवान दे नाल जोड़ना चाहते, सब नू भगवान देना चाहते। वो सब जे देखो एक आदमी एक बहुत वधिया मिठाई खाता है तो सारे नू जाके दसदा यार वो उथों मैं मिठाई लीती सी, सब तो बेस्ट मिठाई है, उस तो वधिया कोई मिठाई नहीं। क्यों दसदा? क्योंकि वो सोचता है कि जरा स्वाद मैं लीता वो दूसरे भी लैन, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਲੀਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ क्लास से जरूर आओ, क्लास से जरूर आओ, क्लास से जरूर आओ। लेकिन लोग एक ही गल करते, देखो जी भगवान कृपा करनगे ते असीं आवांगे। अरे कृपा कितनी की है भगवान ने तुहाडे उत्ते, तुसीं उस कृपा नूं पहचान लवो ते भगवान दा तुसीं देनियां नहीं दे सकदे। भगवान ने सब तो पहली कृपा जिहड़ी भगवान ने तुहाडे ते कीती है, सब तो पहली जी कृपा भगवान ने तुहाडे ते कीती है वो है कि तुहानू इन्ना सुंदर मानव जन्म दिता, बुद्धि वाला जन्म दिता है, मानव जन्म दिता है, मनुष्य का शरीर दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बुद्धि दी है। और देखो बुद्धि मिली है तो बुद्धि का यूज भी तो करो ना, बुद्धि मिली है तो बुद्धि का यूज भी तो करना है। बुद्धि का यूज करके भगवान की प्राप्ति करनी है। बुद्धि मिली भगवान की प्राप्ति वास्ते, और किसी काम वास्ते बुद्धि नहीं मिली। सानू जिहड़ी बुद्धि मिली है सिर्फ भगवान की भक्ति करने वास्ते बुद्धि मिली है। और सब तो वड्डी देखो मनुष्य जन्म जिहड़ा भगवान ने दिता, कितनी वड्डी कृपा कीती है साडे ते। अगर मनुष्य जन्म ना दिता हुंदा, असीं किते कुत्ता बिल्ली चूहा ये सब बने हुंदे ते फिर असीं भक्ति किस तरह कर सकने सी, फिर असीं किस तरह कर सकने। लेकिन भगवान इन्ना सोहना सानू शरीर दिता है, इन्ना सोहनी दिमाग दिता है, बुद्धि दी है। असीं उहदे नाल भगवान की भक्ति अगर नहीं करते तो भगवान फिर दोबारा इहो जिहा शरीर देणगे। भगवान कहेंगे अरे ये नालायक आदमी है, इनू मैं जिस तरह एक आदमी ने ना एक बंदे नू 1 लाख रुपया देता, वो कहता है 1 लाख रुपया, वो कहता जी 1 लाख का मैं की करा, कहता जा ऐश कर। वो 1 लाख रुपया लेके बड़ा खुश होया, कहने लगा तो मजा आ गया, 1 लाख मुफ्त च मिल गया। वो 1 हफ्ते में खत्म करके 1 लाख रुपया फिर चला गया। कहते हुण किदां आया, कहता जी वो तो खत्म हो गया। कहता उन्हें गालां कढ़ियां, कहता भज जा तू, दोबारा ना आई मेरे को। कहता मैं तेनों दिता सी कोई काम कर, कोई उहदे नाल पैसा बना, कोई अपना घर चला, अपने घरदियां नूं खुशी सुखी कर, तू भी सुखी हो, ते तू उहनूं बर्बाद करके आ गया। इसे तरह ही भगवान कहते मैं तेनों मनुष्य जन्म दिता तेनों अपनी प्राप्ति लई। जदों मां दे गर्भ विच हुंदा ना बच्चा, उदों की कहंदा, उदों इहो ही कहंदा
ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਰੋਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ, ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਨੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋਰ। ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਲਾਸ ਚ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, सर्व शास्त्र कहे, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र, लव मतलब बिल्कुल मामूली सा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब सिद्धि प्राप्त करने से लव मात्र साधु संग की जरूरत है। लव मात्र साधु संग अगर प्राप्त हो गया तो सानू सर्व सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ भगवान की प्राप्ति सचमुच हो जाएगी, बिल्कुल सचमुच हो जाएगी। साधु संग का इन्ना प्रभाव है, भगवान साधु दी जो साधु इच्छा करता है, भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते। साधु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, साधु का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो अगर साधु ने किसी ने आशीर्वाद देता तो भगवान अवश्य मिलेंगे। नारद जी ने की आशीर्वाद दिता चित्रकेतु, चित्रकेतु ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। चित्रकेतु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ चित्रकेतु ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ
उस वेले प्राप्त होएगी। और तेरा यह महल रूप दा जिहड़ा बनया होया विमान है, ये विमान तेरी इच्छा ना चलेगा, जिथे तू चाहेगा उत्थे पहुंच जाए। सारे संसार च जिथे मर्जी भ्रमण करता रहो। राजा चित्रकेतु बड़ा खुश होया, क्योंकि अंदर इच्छा तो सी, इच्छा सी ते भगवान ने देखो, भगवान साडे हिरदे दे अंदर दियां तहवां दे अंदर भी जिहड़ियां इच्छा हैगियां ना लुकियां होईयां, वो भी भगवान जानते। असीं भगवान नूं चीट नहीं कर सकते। असीं ये नहीं कह सकते भगवान मैं ते तेरी शरण च, जिद्दां असीं लोग आम कह दिंदे आ भगवान मैं ते तेरी शरण च। सानूं पता असीं शरण वरण च कोई नहीं है, इसलिए भगवान नूं चकमा देने की कोशिश करने पे, भगवान नूं धोखा देण डए। शरण च नहीं है, शरण च हुंदे ते फिर भगवान की आग्या का पालन कर। ਜਿਹੜੇ शरण च ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ भगवान की आग्या का पालन, आग्या पालन ही शरण है। आग्या पालन का दूसरा ना शरण। लेकिन ਅਸੀਂ शरण च नहीं ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ फिर भी भगवान ਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ ਆ। तो भगवान तो जानते हैं, भगवान ਨੂੰ तो हर चीज का पता है कि कौन शरण च है, कौन शरण च आना चाहता है, कौन शरण च नहीं आना चाहता। ये संसार के जीव ਜਿਹੜੇ है, इस संसार के जीव शरण च नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? वो कहते जे ਅਸੀਂ शरण च चले गए ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਹਾਂ, ਇੰਦਰੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਆਸਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ सूअर दी योनी मिल गई। कोई पाप कर्म सामने आ गया, राजा इंद्र ਨੂੰ सूअर दी योनी मिल गई। सूअर दी योनी च ਉਹਦਾ परिवार बन गया। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ब्रह्मा जी ने देखा कि ਇਹਦੀ सूअर दी योनी ਦਾ समय समाप्त हो ਰਿਹਾ, मैं ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗਿਆ, ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ਕਹਿੰਦੇ इंद्र ਤੂੰ वापस चल, तेरा समय पूरा हो गया। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ सूअर ਜਿਹੜਾ ਸੀ, सूअर ਦੀ ਯੋਨੀ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ सूअर ਹੀ ਸਮਝੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸਤਵ ਚ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਚੱਲ ਤੇਰਾ समय पूरा हो गया, चल अपनी सीट संभाल चल के। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਠਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਇੰਨੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ? ब्रह्मा जी ने मत्थे ते हथ मारिया, कहने लगे यार ਇਹਦਾ दिमाग किथे बैठा होया है, एक ही सोचता है। अरे बाबा वहां तो बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे तुमको, वहां ये सारियां चीजें लेने की जरूरत ही नहीं है। कहना मैं नहीं जाना। क्यों? मैनू ते यह विष्ठा चाहिए है, इंद्रिय तृप्ति मेरी जी होन रही है, यह मैनू चाहिए है। फिर वो कहना यह मेरा परिवार नाल जाएगा? कहना मूर्ख, ये परिवार थोड़ी नाल जाएगा, ये परिवार तो भौतिक परिवार है, उत्थे तेरा परिवार असली परिवार तो उत्थे है। कहता ब्रह्मा तू मैनू चकमा देन दे, तू मैनू मूर्ख समझना मैं तेरे नाल चले जावां? मैं तेरे नाल नहीं जाना चाहता। सो इस भौतिक जगत च इंद्रिय तृप्ति च लिप्त जिन्ने भी लोग है, सारे दे सारे भगवान नू ठेंगा दिखाण दे। वो कहते ना असी नहीं जाना। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान नू कहते हैं, नरसिंह भगवान नू प्रार्थना करते हैं कि नरसिंह भगवान आप देखो कि नरसिंह भगवान कहने लगे देखो बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुसी इन्ना भजन किया और मैं तेनू आनंदित करने वास्ते आया हुआ। तो कहने लगे ठीक है तुसी आए हो, पर मैं चाहना कि इस संसार दे जरा आनंदित करन आए हो तुसी। भगवान कहने लगे कि तेरा समय पूरा हो रहा, तू चलना है, मेरे धाम चलना है। कहने लगा मैं कल्ला नहीं जाना चाहता। प्रहलाद महाराज कहने लगे मैं कल्ला नहीं जाना चाहता। कहते फिर? कहने लगे कि मैं इस संसार के जो मूर्ख लोग है उन्होंने सारे नाल लेके जाना। मैं ये बेचारे धूर्त और मूर्ख पागल लोग इस संसार से दुख भोगन डे है, किसी तरह भी मैं सुखी करना चाहता, ये भी आनंद विच रहा। नरसिंह भगवान मुस्कुराए, हस पाए, कहने लगे अच्छा इनू अजे भी मेरी माया की समझ नहीं आ रही कि मेरी माया कितनी प्रबल है,
जा बेटा जेड़ा जेड़ा जाना चाहता उन्होंने लै। प्रहलाद महाराज गए। सॉरी जरा 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, ये डाटा खत्म हो रहा है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नरसिंह भगवान कहने लगे कि प्रहलाद तू जिन्हों जिन्हों ले जाना चाहना है अपने नाल ले आ। प्रहलाद जी चल पे, जाके देखते हैं एक सूअर नाली दे विच बैठा, बहुत वड्डी नाली दे विच बैठा है, बड़ा आनंद लै रहा नाली च बह के। ते प्रहलाद जी कहने लगे, कहते अपने मन च सोचते, कहते कितना मूर्ख है दसो, इन्नी गंदी योनि च बैठा होया है और इसे नूं मैं कहना कि चल तू मेरे नाल। उन्होंने कहते सूअर नूं भाई भगवत धाम जाएगा? कहता क्यों भगवत धाम क्यों जाऊं? नहीं नहीं तुम यहाँ इतना कष्ट भोग रहे हो, नाली में बैठे हुए हो। कह रहा नाली है, मेरा तो एयर कंडीशन ये है, तुम इसको नाली कह रहे हो? हाँ। और उसको वहां विष्ठा विष्ठा खा रहा था, विष्ठा। तो विष्ठा खा रहा था तो अब बड़ा घिन आ रही है। प्रहलाद महाराज को कहने लगे यार इतना गंदा है। तो पूछता है वो सूअर, पूछता है, कह रहा है अच्छा ये बताओ वहां विष्ठा खाने को मिलेगा? अरे कहने लगा कि भाई वहां विष्ठा नहीं मिलता, वहां तो उत्तम योनि प्राप्त होगी, तुम्हें उत्तम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और हर समय भगवान के साथ रहो। तो वो सूअर को इतना गुस्सा आया और वहां वो पीछे खाने को भागा प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज को खाने को भागा, भाग जा यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता, कहां से आ गया तुम? तो प्रहलाद महाराज को डांट के उसने भगा दिया। प्रहलाद महाराज कहे कि देखो मनुष्य जीव जो है, जीव इस संसार में कितना भी कष्ट भोग रहा है, लेकिन उस कष्ट को भोगते हुए भी उसी में प्रसन्न, उसी में संतुष्ट है। इतना कष्ट भोग के भी उसी में संतुष्ट है, वो भगवान के धाम नहीं जाना चाहता। तो प्रहलाद महाराज आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे जाके देखते हैं एक बुढ़ी मां अपने घर दे बाहर मंजी दे उत्ते बैठी हुई है और एक ओदे कोल भांडा पिया जिहदे च ओदे घर दे ओनू खान पीन नू दे दिंदे और वो सोटी ओदे कोल एक पई है। वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जेडे पोतरे पोतरियां ओनू आके चिढ़ांदे है, ओनू तंग करदे है, वो बड़ी सुखी है। प्रहलाद जी कहते हो अपने मन च सोचते, कहते तो बड़ी दुखी है, देखो ए बच्चे अपने बच्चे ही तंग करते पे, अपने बच्चे ही सताते पे है और मैं इनू ले चलना भगवत धाम। ओनू कहंदा माता भगवत धाम जाएगी? कहंदी की है वे भगवत धाम की है? भगवत धाम बड़ा सुख और बड़ा आनंद है, उथे कोई कष्ट नहीं है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ कष्ट नहीं है। तेनू देख घरदियां ने घर तो बाहर कढ़िया होया है, सड़क गली दे विच तेरा मंजा लाया है, अंदर घर विच तेरे लिए जगह नहीं, कितना कष्ट भोगने मिलिया है, तेरे ही दुध ते पोते आके तेनू जिहड़े चढ़ाण डए तेनू तंग करन डए, ते तू किसी तरह इथों सुखी हो तो अपना भगवत धाम जा। कहन लगी, कहंदी मैं खसमण खानिया अपने दोतरिया पोतरिया दे अजे विआह देखने, तू मैनू भगवत धाम नहीं जान दिया? छोटी लैके ओदे पिछे दौड़ी, कहंदी भज जा तू, मैनू भगवत धाम नहीं जान दिया। भगवत धाम जावे तेरा प्यो, भगवत धाम जावे तेरी मां, भगवत धाम जावे तेरा खानदान, मैं क्यों भगवत धाम जावां?
सो भगवत धाम जाने को कोई तैयार नहीं है। जो जेल नरक च बैठा है उसे नरक विच सुखी होना चाहता है, उसे नरक से सुखी होना चाहता है। जिस तरह जेल च कैदी होंगे ना, कैदी, वो कैदी की करते हैं, जेल विच ही नारे लाते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें खाना बढ़िया दो, हमें टेलीविजन लगा के दो, हमें पंखा लगा के दो। अरे जेल में बैठे हो यार, जेल से निकलो, कोई ऐसा काम करो, जेल से बाहर निकलो। असल जीवन तो बाहर है, इस संसार में असल जीवन नहीं है। ये संसार तो जेल है, इस ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਭਗਵਤ ਧਾਮ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਧਾਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਧਾਮ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ, लेकिन कोई नहीं जान नु तैयार। भगवान दी माया बड़ी प्रबल है, भगवान दी माया दा पार पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। हाँ, इस करके भगवत धाम वही जाएगा जिदे ते भगवान ने कृपा की है। और कृपा की है, कृपा की है साधु संग कृपा है। भगवान जो कृपा करते हैं, भगवान जो जीव ते कृपा करते हैं तो साधु संग देंदे हैं, सच्चे साधु का संग देंदे, और सच्चे साधु के संग नाल भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। सच्चे साधु के संग नाल भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। जे साडा अहंकार सानू पकड़ के बैठा रहे, फिर असी साधु का भी अपमान कर देंगे हैं, फिर सानू प्रहलाद महाराज का भी अपमान कर देता, फिर सानू भगवत प्राप्ति कितों होएगी? फिर हो ही नहीं सकती। सो इस करके भगवान ने कृपा की थी, सानू मनुष्य योनि दी, सानू मनुष्य योनि बुद्धि वाली योनि दी। ये भगवान की कितनी वड्डी कृपा है। असी कहने भगवान कृपा करनगे, समय साडे कोल समय ही नहीं है। भगवान जो कृपा करेंगे तां असी भगवत सत्संग दे विच आवांगे। अरे भगवत सत्संग च भगवान ने कृपा कितनी वड्डी की थी कि तुहानू मनुष्य योनि देती, मनुष्य योनि च शरीर बुद्धि देती, और हजे भी असी भगवान की कथा नहीं सुनते, अजे भी भगवान का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, फिर कदों करांगे? भगवान ने कितनी वड्डी कृपा की थी कि सानू शरीर दे विच सारे अंग दिते, अखां दित्तियां, कान दिता, नक दिता, मुंह दिता। अगर एक अंग रख लेंदे भगवान, फिर की हालत हुंदी? हाँ, कान अगर भगवान रख लेंदे, सुनाई नहीं पैंदा डोरे, ते फिर की करदे? इस संसार की कोई भी गल असीं सुनी नहीं सकते, सत्संग नूं सुनी नहीं सकते, फिर की हालत हुंदी? हुण ते असीं सत्संग नूं सुन सकने हैं, उस सत्संग नूं सुन के असीं भगवान दा धाम प्राप्त कर सकने हैं। जे साडा कान ही नहीं हुंदा, फिर असीं की करदे? चलो भगवान जे अखां ही ना दिंदे, अखां ही रख लेंदे, फिर की हुंदा? एक भी अंग अगर भगवान रख लेंदे, फिर की हुंदा? और भगवान ने देखो कितनी कृपा की, इन्ने इन्ने सुंदर सुंदर अंग देते, फिर सुनने लई संगीत दिता, भगवान ने अपना संकीर्तन दिता। मेरा संकीर्तन सुनो, कहते हैं कि संकीर्तन जरा नहीं सुनता, जरा गंदे गाने, फिल्मी गाने सुनता है, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੱਪ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਪ ਰੂਪੀ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਚ ਲੈ, ਨਰਕ ਚ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, केवल भगवान का भजन सुनना है, केवल भगवान का जीवा नाल भगवान का नाम जप करना है। ये जीवा इस करके मिली है, भगवान का नाम जप करने लई, सानू प्रजल्प करने लई जीवा नहीं मिली कि असीं सारा दिन संसार दीयां गल्लां करते रहिए, ए की होया, उहदे नाल की होया, इहदे नाल की होया, वो मर गया, वो जी पिया, उहदे। अरे सारी दुनिया मरेगी, सारी दुनिया जान वाली है, दुनिया विच कोई भी रहन नहीं है परमानेंट आया, सब मर जाने हैं। कोई आज मर गया, कोई कल मर जाएगा, कोई परसों मर जाएगा, कोई चौथ मर जाएगा, किसी का इत्थे अस्तित्व परमानेंट नहीं हैगा। इस करके जिन्हां ने मारी जाना उन्हां दीयां गल्लां च असीं क्यों पए आ? असीं ओहदी गल क्यों नहीं करदे जेड़ा हमेशा रहना है? भगवान ने हमेशा रहना है, भगवान आज भी है, भगवान आज तो 1000 साल पहलों भी सी, 10,000 साल पहलों भी सी, 5 लाख साल पहलों भी सी, 10 लाख पहलों भी सी, करोड़ों साल पहलों भी सी, और भगवान करोड़ों साल बाद भी रहणगे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ?
क्यों असीं ओहदियां गल्लां रात दिन करते रहने? हाँ, साडी बुद्धि किन्नी डल है, किन्नी मूर्ख बुद्धि है कि असीं इस संसार च अपनियां प्रॉब्लमां सॉल्व करते रहने। कदी प्रॉब्लम किसी की सॉल्व हुई है? साडे दादे परदादे, उन्हां दे दादे परदादे सब प्रॉब्लमां सॉल्व करते रहे और प्रॉब्लमां सॉल्व करते करते ही चले गए। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई किसी दी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। वो प्रॉब्लम उस तरह ही लैके चले गए ਜਿਹੜੇ प्रॉब्लम लैके जाते हैं, फिर ऐसे ही प्रॉब्लम वाले संसार दे विच फिर आ जाते, फिर आके इत्थे ही फिर वही नरक भोगते हैं, फिर वही नरकीय जीवन बताते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं और नरक विच ही आते जाते रहते। हाँ, और मजेदार गल की है कि जेरी भी योनि विच मनुष्य जीव आंदा है, उसे योनि दे विच ही उस बड़ा खुश क्योंकि बुद्धि नहीं है, क्योंकि साधु संग नहीं है। साधु संग तो बिना बुद्धि नहीं मिलती। भगवान जो बड़े प्रसन्न हो जाते किसी जीव दे उत्ते उन्होंने साधु संग देते। भगवान जो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उन्होंने साधु संग। असी की करने, असी हर वेले अपनी इंद्रिय तृप्ति के चिंतन च लगे रहते। इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए और उतों की करने, उतों भगती का ढोंग भी करने। लोकी जाते मंदिर, मंदिर जाके की करते, एक टिक्का इत्थे मत्थे ते लांदे, एक कन्नां ते लांदे, एक गले ते लांदे है, 7-8 टिक्के ला के ते फिर आ जाते संसार च विचरण करते हैं। वो सोचते हैं कि साढ़े नाल बड़ा भगत ही कोई नहीं। और सारा दिन की करते हैं, सारा दिन सारे बुरे काम करते, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते, सब कुछ करते और टिक्के लाने नाल कोई भगत नहीं बन जाता। भगत बनने वास्ते भगवान दे साधुआं दा संग सीरियसली करना पैंदा है। सीरियसली उन्होंने अपने हिरदे दे अंदर भगवान नू जगह देनी पैंदी है। असी की करने, दूसरे की निंदा करने, 24 घंटे दूसरे की निंदा करने। हाँ, अपने आप को नहीं देखते, अपनी आत्मा नू टटोल के नहीं देखते असी अंदर की करने पे, असी गलत, सारा कुछ गलत करने पे, लेकिन दूसरे वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, सारे ही बुरे, लेकिन मैं चंगा। अपना अपना अपनी स्तुति अपने मुंह नाल बखान करना 24 घंटे। देखो जी मेरे नालों वधिया कोई नहीं, मैं सब तो वधिया, मैं कितना अच्छा, मैं कितना अच्छा। अपनी स्तुति, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जेड़ा अपनी स्तुति 24 घंटे करता रहता है वो मरे हुए दे तुल्य, वो मरे हुए दे तुल्य, वो बिल्कुल इस तरह जैसा एक मुर्दा। अपनी स्तुति करने वाला महामूर्ख, महामूर्ख, क्योंकि आत्मा संशोधन अपने आप को सिंहावलोकन, सिंहावलोकन मतलब सिंह, सिंह मतलब कहते शेर नूं, शेर अवलोकन करता है। अवलोकन मतलब जो चलता है शेर 2 कदम चलेगा फिर पीछे दोनों साइडों ते देखेगा कि कोई दुश्मन पिछों तो नहीं आ रहा, कोई हाथी ते नहीं आ रहा, कोई गेंडा ते नहीं आ रहा, फिर 2 कदम अगे पुटेगा। इस करके मनुष्य नूं सिंहावलोकन करना चाहिए, अपनी आत्मा का संशोधन करना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं कोई काम गलत तो नहीं कर रहा, मैं भगवान वाल जा रहा कि नहीं जा रहा, मैं भगवान दे नाल अपना संबंध जिहड़ा विसर चुका है वो संबंध नूं पुनः दोबारा जोड़न दी प्रयास कर रहा कि नहीं कर रहा, मैं साधुआं दी शरणागति लै रहा कि नहीं लै रहा, मैं साधुआं दा सम्मान कर रहा कि नहीं कर रहा। अपने आप को विचार करना चाहिए, अपने अपने विवेक बुद्धि नू जरूरत इस्तेमाल करना चाहिए। और जरा भगवान नू नहीं जानता, जरा मूर्ख है, जरा भगवान नू बिल्कुल नहीं जानता, इस संसार वाले भगवान नू बिल्कुल नहीं जानते, किनू जानते, उस केवल धन नू जानते, धन चाहिए, धन 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 ही जीवन, धन ही जीवन है। धन क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी ही जीवन है। लक्ष्मी पति नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी जिसको चाहिए वो कौन होता है पता है? वो रावण होता है। रावण को लक्ष्मी चाहिए, सीता माँ को उड़ा के ले गया, लक्ष्मी को उड़ा के ले गया, उसको राम नहीं चाहिए, उसको लक्ष्मी चाहिए। तो जो भक्त है, जो भगवान का धन्यवादी है, जिसको पता है भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि मैनू ये मनुष्य जन्म दिता है, वो की करेगा? वो भगवान का हमेशा गुणगान करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। भगवान का गुणगान करे, हमेशा भगवान का गुणगान करे, क्योंकि जेड़ा भगवान का गुणगान नहीं करता और फिर उतों कहता कि मैं बड़ा विद्वान हाँ जी, मैं बड़ा विद्वान हाँ। हाँ देखो, किसी भी आदमी नूं तुसीं किते भी मिलदे हो, ट्रेन च ही लै लो, तुसीं ट्रेन च किते सफर करदे हो, उत्थे कोई आदमी अगर तुहानूं मिल गया, कोई गल चल पई, वो तुहाडे ते इहो जिहा इंप्रेशन पाना चाहेगा, कहेगा मेरे नालों ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, तुहानूं मैं सारियां गल्लां दसना, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਖੁਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए कि भगवान तो कृपालु कोई नहीं है, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए, साधुओं का संग करने का प्रयास करना चाहिए कि मैनू साधु संग मिले। ये भगवान आपका अति अति धन्यवाद है कि आपने मुझे सच्चे साधु नाल मिलवा दिता है। हुण ए सच्चे साधु की शरण लैके मैं तुहाडे कोल आ रहा, भगवान मैं तुहाडे कोल आ रहा, कृपा करके मैनू स्वीकार कर लेना। भगवान कहते मैं स्वीकार जरूर करांगा, जदों तू साधु दी शरण च रहेगा मैं जरूर स्वीकार करांगा। जे तू शरण नूं छड़ देता, जे तू अहंकार वश शरण नूं छड़ देता, ते मैं तेरे वल तकांगा भी नहीं, भगवान तकदे भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अहंकारी नाल कदी गल नहीं करदा। जिहदे अंदर अहंकार है, भगवान दा खुराक ही है, भगवान दी खुराक है अहंकार। भगवान अहंकार नूं खांदे है, तो भगवान कहते कि जिहदे अंदर अहंकार है उन्होंने मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े महान भक्त, बड़े बड़े महान भक्त, वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े महान भक्त कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुहाडे दासां दे दासां दे दासां दे दासां दा दास। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जदों भक्त बन के आए, वो कहने लगे मैं दासां दे दासां दे दासां दा दास हां। वो कहने लगे, कोई पूछता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आप तुसी कौन हो, ब्रह्मचारी हो? ना मैं ब्रह्मचारी नहीं। तो की हो, गृहस्थ हो? ना मैं गृहस्थ भी नहीं। सन्यासी हो? ना मैं सन्यासी भी नहीं। मैं ते गोपियां दे दासां दा दास हां। मेरा जरा डेजिनेशन है हमेशा, मैं जेड़े भगवान दी भक्ति करदियां गोपियां, गोपियां तो उच्चा कोई भक्त नहीं है, हैं उन्हां दे दासां दे दासां दे दासां दे दासां दे दासां दे दासां दा दास हां। ये डेजिनेशन जिहदा अहंकार भगवान दे चरणां च, भक्तां दे चरणां च गिर गया, जिहदा अहंकार भक्तां दे चरणां च गिर गया, भगवान उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भगवान कहते आ जा बेटे आ जा, क्यों कि तू मेरे दासां दा दास है, इस करके तेरे नाल मैं प्रेम करा, तू प्रेम दे लायक, तू प्रेम दे लायक। जेड़ा भगवान दे भक्त दासां दे दासां दे दासां दे दासां दे दासां दे दासां नाल प्रेम करदा है, भगवान ओदे नाल प्रेम करदा। भगवान अहंकारी नाल प्रेम नहीं करदा, भगवान नूं अहंकारी नाल कोई लेना देना नहीं होंदा। सो सानू की करना है, समय नहीं मिलता। साडी पहली जी कंडीशन है हुई कि देखो जी की करिए, समय नहीं मिलता, की करिए समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। तो समय नहीं मिलता, ये झूठ है, एकदम झूठ। साडे कोल समय बड़ा है, टेलीविजन वेखण लई समय है, गप्पा मारन लई समय है, लोकां दी निंदा चुगली करन लई समय है। निंदा विच बड़ा स्वाद आंदा है, निंदा करने जदों असीं दूसरिਆਂ दी बड़ा मजा आंदा। आहा की होया, फिर उन्हें की किया, अच्छा फिर उन्हें अगों की किया, फिर उन्हें अगों की किया, बस ऐ कुछ ही चलदा रहिंदा सारा। ओदे लई समय है, निंदा लई समय है, चुगली लई समय है, लेकिन भगवान दा नाम जपण वास्ते, भगवान दी कथा सुनण वास्ते समय नहीं मिलदा, समय नहीं मिलदा। दुख भोगने पे
मेरे को मैनू एक ऐसा आदमी मिलिया ਜਿਹੜਾ मेरा बड़ा पुराना जानकार सी, ਉਹਨੂੰ मैं बड़े तरले पाए, मैं कहा बेटा ਤੁਸੀਂ सत्संग च आओ। कहंदा जी की करा, मेरे बच्चों ने मैनू दुखी करके रखा है। मैं कहा फिर दुखी करके रखा तो छड्डो उन्होंने, उन्होंने दे हाल ते छड्ड दो, तुसी सत्संग सुनो। अगला जीवन फिर तू जान वाला है, अगला जीवन फिर आने वाला है, अगला जीवन कम से कम सुधार लिया तू, यह जीवन तो बर्बाद कर ही लिया, हूं अगला जीवन तो सुधार लिया, यह जीवन तो गया तेरा, तू नष्ट कर लिया अपना जीवन। क्योंकि पुत्र तेरे आज्ञाकारी नहीं है, धीयां तेरियां आज्ञाकारी नहीं, धी किसी नाल दौड़ गई, पुत्र जेरे पुछदे नहीं, पुत्र शराब पी के घर आ जाते हैं, हाँ वो पुत्रां दी कमाई कोई नहीं, वो पुत्रां नूं भी पालदा पिया, उन्हां दे बच्चिआं नूं भी पालदा पिया। कितनी बुरी हालत है। और बुढ़ा तू हो गया, मरण दे किनारे, की प्राप्त होना है? इनू त्याग दे और सत्संग सुन, सत्संग च आ। वो कहने लगा समय भगवान देंगे तो मैं आवांगा, भगवान कृपा करनगे तो मैं आवांगा। भगवान तेरे ते कदी कृपा नहीं करनगे, जिस तरह की कृपा तू चाहना है। तेनू कृपा इन्नी दिती है भगवान ने, तू और कृपा दा थैंकफुल नहीं हो रहा। तेनू भगवान की कृपा देंगे। तो सानू हमेशा भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए भगवान तेरा लख लख शुक्र है कि तू सानू मनुष्य योनि दिती, तू सानू साधु संग दिता, संतां दा संग दिता, और तू सानू भक्ति प्रदान कर रहा है। साधु संग, साधु की दिंदे, साधु भक्ति प्रदान कर दे, सानू तू भक्ति प्रदान कर रहा है, सानू वो भक्ति प्राप्त हो रही है। अरे भगवान तेरा लख लख शुक्र है। हाँ, सानू तू वो जीवन दे रहा है जेड़ा जीवन आनंदमय जीवन, क्योंकि भक्ति आनंदमय है, भक्ति तो ऊपर कोई आनंद नहीं। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जेड़ी वास्तविक आनंद दे सकती है, प्रदान कर सकती है, वरना कभी भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है संसार विच। इस करके हे भगवान तुहाडा लख लख शुक्र है, तुसी सानू साधु संग दिता, तुसी सानू भक्ति दे रहे हो, तुसी सानू आनंदमय जीवन दे रहे हो। हे भगवान, तो भगवान कहते हैं अरे भक्ति प्राप्त हो गई तो समझ लो मैं प्राप्त हो गया, मेरा नाम प्राप्त हो गया, जो मेरा नाम जपता पिया है, मैं नाम रूप विच मैं ही ते हां, कथा रूप विच मैं ही ते हां, कथा भी मैं हां, नाम भी मैं हां, सब कुछ मैं हां। ते होर तू की चाहना है? ते जिहड़ा भक्त भक्ति करदा है ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ भगवान दा कथा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ भगवान दा अनुभव ਹੁੰਦਾ है, नाम ਵਿੱਚ ਵੀ भगवान दा अनुभव ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦਾ जीवन धान्य धान्य हो जाता है, वो बहुत प्रसन्न रहता है, हमेशा भगवान दे नाल उंगली पकड़ के चलता है। जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलता है, वो भगवान की उंगली पकड़ के चलता है। ऐसा लगता है कि मैं भगवान की उंगली पकड़ के, एक छोटा सा बच्चा 4 साल का अपने पिता की उंगली पकड़ के किस तरह चलता है, नचदा टपदा होया चलदा। इसे तरह ही भक्त जरा है वो भगवान की उंगली पकड़े रहता है और नचदा टपदा होया चलता है। उन्होंने संसार का कोई दुख नहीं व्यापता, उन्होंने संसार का कोई दुख अनुभव नहीं होता, उन्होंने केवल भगवान का आनंद अनुभव होता है। उन्होंने लगता है कि भगवान मेरे नाल है, हर परिस्थिति च भगवान मेरे नाल है, इस करके मैनू चिंता करने की लोड़ ही नहीं। एक बच्चा जो 5 साल का बच्चा माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है, नचदा होया टपदा होया है, उन्होंने थोड़ी ये चिंता होंदी है कि मैनू सवेरे रात की रोटी कित्थों मिलेगी, उन्होंने चिंता होंदी है मेरी स्कूल की फीस कौन देगा, मेरे कपड़े कौन ले आएगा, कोई चिंता नहीं होंदी। असी जो भगवान की उंगली पकड़ लीए फिर सानू क्यों किसी तरह की चिंता है, फिर सानू चिंता किस गल दी है? भगवान की उंगली पकड़ी हुई है, अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई है, नचदे टपदे हुए चल रहे हैं। सानू दुख सानू की कर सकते, सानू की कर सकते, दुख साडा की बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान साडी उंगली पकड़े हुए है। उन्होंने फिक्र होएगा कि इनू मैं की देना है, कदों देना है, ਇਹਦੇ ਲਈ की करना है, मैं की नहीं करना, क्योंकि भगवान तो वड्डा साडा परम हितैषी और कोई संसार च नहीं है। भगवान माता पिता तो वड्डा परम हितैषी कौन हुंदा है? भगवान तो वड्डा परम हितैषी कोई नहीं है। इस करके भगवान साडे परम हितैषी है। सानू हमेशा अनुभव करना चाहिए कि भगवान साडे परम हितैषी है, भगवान दे नाल असी चल रहे हैं। सानू चिंता करन दी, किसी तरह की चिंता करन दी कोई जरूरत नहीं। सानू समय मिलता है, असी जानबूझ के झूठ बोलने कि साडे को समय नहीं मिलता भक्ति करन, समय है, असी जानबूझ के कहने
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਸਤਵ ਚ ਸਮੇਂ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਤਕਾਰਾਂਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੁਤਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਡਾਂਟ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कुछ प्रश्न हो तो मैं हाजिर हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो मैं हाजिर हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक छोटा जिहा क्वेश्चन है जी, छोटा जिहा बिल्कुल। मैं पूछना चाहना जी, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आई, आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इन्हां दा प्रश्न है कि मोह माया तो किद्दां छुट सकदे हां? हाँ, बड़ा आसान तरीका है मोह माया तो बचन नहीं, बहुत आसान तरीका है। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। मैं पहले ही दसिया कि मोह माया जेरी है वो अंधकार है, अज्ञान जेरा अंधकार है। ये संसार माया का मतलब अंधकार, और कृष्ण नू अपने अंदर बिठा लो ते सूर्य जदों निकलता है ते अंधकार रहिंदा है। अंधकार सूर्य के सामने हुंदा है, अंधकार कदी सूर्य के सामने नहीं खड़ा होंदा। इस तरह जदों कृष्ण आ गए ते माया मोह कदी सामने खड़ा नहीं हो सकता कृष्ण दे। तो कृष्ण जीवा ते बिठाओ, कान दे रस्ते च अंदर लेके जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जदों कृष्ण तुहाडे अंदर चले गए, कान दे रस्ते अंदर गए, मुंह दे रस्ते बाहर आ, प्रकाश हो जाएगा, माया अपने आप नष्ट हो जाएगी। सीरियसली कृष्ण नू अपना लो, सीरियसली कृष्ण नू अपना लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
हरे Unmute. कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਵਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ। जी जी जी। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? देखो ਕਵੈਸ਼ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਐਸ਼ ਮੌਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਹੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਪੂਜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਏਸ਼ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ 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 ਭਗਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕੁਵੇਸ਼ ਜੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ सबका धन्यवाद। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਤन्य ਚਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮੱਧੇ ਲੀਲਾ 2.17.184 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਯਤ ਰਿਸ਼ੀ ਗਣ ਸਭੇ ਏਕ ਮਤ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਬਿਨ ਧਰਮ। मतलब कि Shri Chaitanya Mahaprabhu replied, the Vedas, Puranas and great learned sages are not always in agreement with one another. Consequently, they are different religious principles. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नहीं दूसरे वगैरह नहीं हो, क्योंकि साधु शास्त्र और गुरु हमेशा एक ही गल कहते हैं। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ तो चैतन्य महाप्रभु ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਰਾ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚੈਤन्य महाप्रभु ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੈ।
तो भगवान जो भी कह रहे हैं वो प्रमाणिक कह रहे हैं। प्रमाण भगवान तो बड़ा प्रमाण तो कोई है ही नहीं, जी प्रभु जी। मैं कहना। तो साधु शास्त्र और गुरु हमेशा ही कोई गल कहते हैं और वो गल जरी है प्रमाणिक होंगी है। जेड़ा में एक भी अगर साधु शास्त्र या गुरु अगर कोई भी एक जिना टैली नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ गड़बड़। ठीक है प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ये राज माता राज प्रभु जी ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी अनम्यूट करके बोलिए। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। चलो ਕਿਸੇ चलो ਹੋਰ ਦਾ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी सभी भक्तों की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और प्रभु जी बहुत ही ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਦਲਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। हरे कृष्ण। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਖੰਡ ਦਲਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦਲਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। फोन नंबर डिस्प्ले कर देता है, इन्हों तुसी स्क्रीनशॉट ले लो और जिन्हों भी किताब की जरूरत है वो सब, जरूरत क्या, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सबनों पढ़नी ही चाहिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। साडे आस-पास समाज दे विच किन्ना भुखा, किन्ना झूठ, किन्ना गदर फैलिया है, वो सब नूं मिटाण वास्ते पखंड दलन एक बहुत ही मील पत्थर का काम कर रही है। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।